এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু জম্মু কাশ্মীৰত বেয়াকৈ মুখ থেকেচা খাইছে বিজেপিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শাহৰ যাদু নচলিল জম্মু কাশ্মীৰৰ জনতাই সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক আৰু জম্মু কাশ্মীৰত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠন কৰিব কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে বৃহৎ জয় লাভ কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰত এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা হ'ল জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল জম্মু কাশ্মীৰত বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিছে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে জম্মু কাশ্মীৰত শাসনলৈ আহিল কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ নেতৃত্বত হ'ব জম্মু কাশ্মীৰত চৰকাৰ জম্মু কাশ্মীৰত বেয়াকৈ মুখ থেকেচা খালে বিজেপিয়ে জম্মু কাশ্মীৰত ধৰাশায়ী হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কংগ্ৰেছ আৰু নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ফেল হ'ল জম্মু কাশ্মীৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শাহ জম্মু কাশ্মীৰত নচলিল মোদী মেজিক কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিলে 49খন আসন জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনত ইয়াৰ বিপৰীতে 29খন আসনতে ৰৈ গ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পিডিপি দলে লাভ কৰিলে 3খনকৈ আসন এআইপি দলে লাভ কৰিলে 1খন আসন আৰু অন্যান্য দলে লাভ কৰিছে 8খনকৈ আসন জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে সকলো শেষ হৈছে ভোট গণনা সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হ'ল এই মুহূৰ্তত আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব উমৰ আব্দুল্লাহ আনুষ্ঠানিকভাৱে উমৰ আব্দুল্লাহৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে উমৰ আব্দুল্লাহ হ'ব জম্মু কাশ্মীৰৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ জনাইছো জম্মু কাশ্মীৰত বৃহৎ জয় লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে কংগ্ৰেছ আৰু নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ বৃহৎ জয় জম্মু কাশ্মীৰত এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে জম্মু কাশ্মীৰত বেয়াকৈ মুখ থেকেচা খালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে জম্মু কাশ্মীৰত শাসনলৈ আহিল কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁট নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হওক বা অমিত শ্বাহে হওক কাৰো মেজিক নচলিল জম্মু কাশ্মীৰৰ জনতাৰ ৰায়দান পৰিল কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ ওপৰত জনতাৰ জনাৰ্দনৰ ৰায়দান কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষত আৰু উমৰ আব্দুল্লাহ হ'ব জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী 49খন আসনেৰে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ এতিয়া আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁট কংগ্ৰেছ আৰু নেশ্যনেল কনফাৰেন্স দলৰ এই বৃহৎ জয়লাভ জম্মু কাশ্মীৰৰ ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক প্ৰত্যাখ্যান কৰা হ'ল জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব এয়া উমৰ আব্দুল্লাহ আমি আকৌ কৈছো কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিলে 49খন আসন 49খন আসন লাভ কৰিলে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ সময়ছোৱাত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হওক অমিত শ্বাহে হওক জেপি নাড্ডাই হওক বিজেপি দলে হওক সকলোৱে দাবী কৰিছিল যে জম্মু কাশ্মীৰত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে কিন্তু তেনেকুৱা নহল জম্মু কাশ্মীৰৰ জনতাই সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে একাখৰীয়া কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক আৰু জনতা জনাৰ্দনৰ ৰায়দান পৰিল কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষত জনতা জনাৰ্দনৰ ৰায়দান 49খন আসনেৰে জম্মু কাশ্মীৰত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে সমান্তৰালকৈ বিজেপিয়ে লাভ কৰিলে মাত্ৰ 29খন আসন 29খন আসনতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পিডিপি দলে লাভ কৰিলে 3খনকৈ আসন এআইপি প্লাছ দলে লাভ কৰিছে 1খন আসন আদাৰ্ছে লাভ কৰিছে 8খনকৈ আসন এয়া হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল বৃহৎ জয় লাভ কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে আৰু জয় লাভৰ পিছতে ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত জম্মু কাশ্মীৰত সকলোৱে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ফূৰ্তি কৰিছে আতচবাজি ফুটাইছে
সকলোৰে মুখে মুখে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁট জিন্দাবাদ ধ্বনি আৰু এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ যেহেতু আগবাঢ়িছে এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব উমৰ আব্দুল্লাৰ নেতৃত্বত গঠন হ'ব জম্মু কাশ্মীৰত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ এই মুহূৰ্তৰ এই ডাঙৰ খবৰ জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ সকলোৱে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে জম্মু কাশ্মীৰৰ ওপৰত দেশৰ জনতাৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলত যে জম্মু কাশ্মীৰত কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে জম্মু কাশ্মীৰত জনতাৰ পক্ষ গ'ল কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ ওপৰত আৰু কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে জম্মু কাশ্মীৰত এই মুহূৰ্তৰ এই ডাঙৰ খবৰ জনাইছো বৃহৎ জয়লাভ সাব্যস্ত কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ ওচৰত ধৰাশায়ী হৈ গ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বৃহৎ জয়লাভ কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে কংগ্ৰেছ আৰু নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ জয়লাভ জম্মু কাশ্মীৰত আৰু উমৰ আব্দুল্লাহ হ'ব পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী জম্মু কাশ্মীৰৰ এই মুহূৰ্তৰ এই ডাঙৰ খবৰ জনাইছো জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেশ্যনেল কনফাৰেন্সে জম্মু কাশ্মীৰৰ এই নিৰ্বাচনত মুঠ 42খন আসন লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে 6খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজেপিয়ে 28খন আসন লাভ কৰিছে সমান্তৰালকৈ অন্যান্য যদি চাওঁ অন্যান্যই 8খন আসন লাভ কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ এআইপি দলে 1খন আসন পিডিপি দলে লাভ কৰিছে 3খন আসন ক্ষমা কৰিব বিজেপি দলে লাভ কৰিছে 29খন আসন এয়া হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল বৃহৎ জয়লাভ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে কংগ্ৰেছ আৰু নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ এতিয়া নেতৃত্বত গঠন হ'ব পৰৱৰ্তী চৰকাৰ জম্মু কাশ্মীৰত আৰু উমৰ আব্দুল্লাহ হ'ব পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী জম্মু কাশ্মীৰৰ আৰু এই জয়ৰ পিছতে কেইবাটা মন্তব্য আছে উমৰ আব্দুল্লাহৰ মন্তব্য আছে শুনো আহক কোনে কি কৈছে मैं अभी फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से बात नहीं करूंगा क्योंकि कई सारी सीटें हैं जिनके नतीजे आना अभी बाकी हैं लेकिन फिलहाल बड़गाम में खड़े होके मैं ज़रूर बड़गाम के वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा मुझे यहां से कामयाब होके भेजा और मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से ख़त्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई थी यहाँ बहुत सी ऐसी तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करना लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो हमें ख़त्म करने के लिए आए थे मैदान में वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने काम के ज़रिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और लायक समझें जो कि अगले 5 साल के लिए हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी। महबूबा जी ने कांग्रेचुलेट किया है, आपको बधाई दी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को नई सरकार के लिए। अब हम उनके मुबारकबाद के पैगाम का शुक्रिया करते हैं और क्या कर सकते हैं ना। अभी फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से बात नहीं करूंगा क्योंकि कई सारी सीटें हैं जिनके नतीजे आना अभी बाकी हैं लेकिन फिलहाल बड़गाम में खड़े होके मैं ज़रूर बड़गाम के वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा मुझे यहां से कामयाब होके भेजा और मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से
खत्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई थी। यहाँ बहुत सी ऐसी तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करना, लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो हमें खत्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने काम के जरिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और लायक समझें, जो कि अगले 5 साल के लिए हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी। महबूबा जी ने कांग्रेचुलेट किया है, आपको बधाई दी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को नई सरकार के लिए। अब हम उनके मुबारकबाद के पैगाम का शुक्रिया करते हैं और क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है लोगों ने पूरा एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दिखा दिया है? क्या आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों ने पूरा एतमाद दिखा दिया है? आज लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इक़दाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं। क्या एक्सपेक्टेशन मैंने एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दी, काम बहुत कर, मुश्किलात दूर कर। यहाँ पे जो बेकारी है उस बेकारी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना, यहाँ पे जो महंगाई है उसकी तरफ देखना, जो ड्रग मेनेस है जो इस रास्ते उठा रहा है तो ड्रग मेनेस को खत्म करना है। उसके लिए हमें कायम करने हैं वो सेंटर जहाँ पे इनका इलाज हो सके। सर, अब आपकी जीत के बाद क्या हम ये माने कि जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह बदलने वाले हैं? आज एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और 4 मुशीर नहीं होंगे, आज 90 लोग जो होंगे यहाँ की इसकी मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस के शुक्रगुजार हैं? आप कांग्रेस के कितने शुक्रगुजार हैं जो अलायंस में पूरा साथ कांग्रेस ने दे दिया? मैं कहता हूँ मैं सबका शुक्रगुजार कि लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी आज़ादी से लिया, और अल्लाह का शुक्र है नतीजे आपके सामने। उमर अब्दुल्ला बने। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला। क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं, और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उनसे यही अपील करूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं अब, क्योंकि लगता था कि अगर मैंडेट कुछ मिक्स्ड होगा, अगर एक तरफा मैंडेट नहीं होगा, तो फिर उसमें बहुत सी शरारतें हो सकती थी, बहुत सारी उथल पुथल हो सकती थी, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी। इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया। 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 सीटें, 2014 में 16 सीटें। ये उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें क्या करेंगे आप? लोगों की विक्ट्री है, लोगों की चॉइस है। आपको लोगों की चॉइस, जो उनकी मर्जी है, उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जमहूरियत में तो यही होता रहता है। नहीं, मुझे लगता है कि लोग चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट, और उनको लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो हमें स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को दूर रख सकती है। आई थिंक दैट इज द, मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह। सॉरी जी, 2014 में आपने जो बीजेपी के, मैं कहती हूँ वो तो बाद की बात है, अब क्या हुआ। पर मेरा ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, जो उनको लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है, और बीजेपी का
मुकाबला डट के कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने वोट दिया। नहीं, मैं तो बार बार वही बात कह रही हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का लग रहा था कि वो गवर्नमेंट बना सकते हैं, मिलजुल के एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर कश्मीर के लोगों ने चुना कि हम एक तरफा वोट दे के एक स्टेबल गवर्नमेंट को वोट दें कि उन्होंने अपोजिशन से ज्यादा सरकार को वोट देने का जो फैसला किया। देखिए, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 50 तक पहुंच जाएंगे। ये मेरा अपना, ये आज का नहीं है, ये मेरी एक हफ्ते से पहले मेरी एनालिसिस है कि कांग्रेस और एनसी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सपोर्ट की। हालांकि जब मुझसे कई कांग्रेस लीडरशिप ने बात भी की, मैंने उनको यही बताया आज से 2-3 दिन पहले। मैंने कहा एनसी और कांग्रेस की जो है मिलजुल के आपके इतने सीट्स आएंगी, आपको बाहर के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड दैट इज आई हैव बीन प्रूव्ड राइट। नहीं, मैसेज ये गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अक्लमंद हैं, बहुत वाइज हैं, और उन्होंने इलेक्शन में इसका सबूत दिया है कि वो नहीं चाहते हैं यहाँ मरकजी सरकार को कोई तोड़ फोड़ करने का मौका मिले, क्योंकि अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता हंग असेंबली होती तो बहुत तोड़ फोड़ हो जाती, और फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को इतनी मुश्किल के बाद जो सरकार मिल रही है, शायद वो सरकार भी नहीं नसीब होती। तो अब माई ऑल द बेस्ट विशेस आर फॉर द जो गवर्नमेंट बनने वाली है कि, और लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, उनसे वाबस्ता हैं, बड़ी मुश्किलात हैं लोगों को, खासकर जो हमारे नौजवान बाहर के जेलों में बंद हैं उसके हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, बिजली के हवाले से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला है, वो लोगों की जो उनसे जो उम्मीदें हैं उन पे पूरा उतरेंगे। थैंक यू सो मच। नहीं, समझ सब कुछ आ गया, लोगों को पता है किससे क्या काम लेना है। तो आपको वोट नहीं हुआ? दैट इज वेरी रॉन्ग ऑन देयर पार्ट। वही तो मैं कह रही हूँ कि जम्मू कश्मीर के, बिलखुसूस कश्मीर के लोगों ने बहुत अक्लमंदी से काम लिया है। अब सोच लिया अगर ये मैंडेट फ्रैक्चर होता तो वो 5 मेंबर्स कितने रेलेवेंट हो जाते, और जो सरकार लोगों ने चुनी वो सरकार बनती ही नहीं, बल्कि वो सरकार बनती जो बीजेपी चाहती। तो ये तो बड़ा बुरा है जो एलजी ने किया है कि नॉमिनेट की, ये नहीं करना चाहिए। ये इमोरल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मेरे हिसाब से। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता ऑल वर्सेस पीडीपी था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बाकी जमातें तो एक साथ थी। ये तो ऑल वर्सेस पीडीपी था, इंक्लूडिंग बीजेपी गवर्नमेंट, जिन्होंने हमारी पार्टी की इतनी तोड़ फोड़ की, इतनी तोड़। अगर 40 मेंबर किसी और पार्टी से निकले होते, एक्स मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर्स, मेंबर पार्लियामेंट्रियंस, वो पार्टी तो कहीं नजर ही नहीं आती। हम तो आज भी टक्कर दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो अजीब बात करते हो आप, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, व्हाई वी शुड से दैट। तभी तो मैंने कल इंतजा ने इसीलिए ट्वीट किया, बिकॉज हमारे लोग वैसे ही कह रहे थे, जबकि मुझे मालूम था कि एनसी और कांग्रेस की अपनी इतनी सीटें आएंगी, उनको बाहर की किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। We will play the role of an constructive opposition. जो लोगों के मुद्दे हैं वो तो इलेक्शन के साथ खत्म नहीं होते हैं। नहीं, मुझे ये लग रहा था कि लोग जो हैं सरकार चुनेंगे, अपोजिशन नहीं चुनेंगे। मैम, क्या आपका चुनाव ना लड़ा जाना भी एक फैक्टर मानते हैं? नहीं, मेरा चुनाव को बीच में मत लाइए। मेरा चुनाव तो मैंने बोल दिया है कि मैं एक बहुत पावरफुल चीफ मिनिस्टर रही हूँ, जिसने बीजेपी के 2 मिनिस्टरों को ड्रॉप कर दिया। ऐसे ये तो कोई कर नहीं सकता है। मुझे बताइए कंट्री में कहीं हुआ है ऐसा, जिसने 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस ली? तो इतना पावरफुल मिनिस्टर, इतने पावरफुल आपके पास इतने पावर्स होना कि आप हुर्रियत को लेटर लिखो कि आप बातचीत करो। तो आज आपको हर चीज के लिए, जैसे उमर साहब ने कहा, एलजी के दरवाजे पे जाना पड़े, तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, आई थिंक वो तो कोई बात नहीं है। शी इज अ फाइटर, शी इज अ बेटर फाइटर देन मी। तो जब मुश्किल वक्त में वो पार्टी के सामने आई, पार्टी को रीजनरेट किया, पार्टी को हिम्मत दी, तो मुझे लगता है ऐसे ही करना चाहिए। जब सब कुछ ठीक ठाक हो फिर आप आ जाओगे ताजपोशी के लिए, तो वो क्या फायदा है। वो तो मुझे लगता है कि मैंने कहा कि न्यू दिल्ली शुड टेक इट एज अ लेसन that people of Jammu and Kashmir have given a verdict in favor of a government, National Conference and Congress, so they should not meddle into their affairs. If they do that, it will be disastrous. It will be worse than what happened to them now. It will be worse. Thank you so much.